If something cannot kill you, you'll just be stronger. We have Gen Zs. We are like, मुझे रोज impress करो, otherwise I'm out. We are not loyal to the brands. Today, Gen Z is going to be the biggest consumer for any brand. शार्क टैंक इफेक्ट ब्रांड पे और आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या है? कि आज भी उनका इनरवेयर अनकंफर्टेबल, सफोकेटिंग और स्किन पर चुभने वाले फैब्रिक से बना है। That was quite fun. What Curvy is doing different from other brands that we come to you. Meet Yash, the brain behind Curvy. A brand that's not just selling products, it's building a vibe. From ideas to impact, he's redefining how young founders think about style, hustle, and storytelling. I realized that I need to do something where I can be myself. Don't spend a lot today. You have to save more for tomorrow because you never know what can happen tomorrow. 10-15 साल पहले की बात करें तो इनर वेयर पे हम लोग पैसा स्पेंड करने की सोचते भी नहीं थे. Every founder out there would say the same. They'll put their head on a wall and they'll smash it when it comes. And do you feel somewhere कि अगर this brand would be led by a woman तो ज़्यादा sale होती या ज़्यादा impact होता? Is it where somewhere you got that? So Yash, thank you for coming here for the podcast. Thank you so much for inviting. I think we've been talking about this podcast for a long time. Yes, So finally, I'm sitting right in front of you. eBay was Loving the setup already, I should tell you. I think the vibe is very nice and feeling energetic for the Saturday. It's good. थैंक यू भाई. मीन से ड्राइविंग काम हो गया मेरा. Yes. यश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah. एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन आपका. हु इज यश टुडे, व्हाट ही इज डूइंग टुडे? Okay. So I am Yash Goel. I am founder and CEO of Curvy. Curvy is an innerwear and shapewear brand for women. It's a new age brand. I am a guy who's curious, is what I say all the time, because I don't stay stable. I've done engineering, I've done investment banking, I've done venture capital. Now I'm doing my own business. So I think I just like to do things. That's me. I love doing things. And what about your family background and all? So I come from Rajasthan. There's a tier 3 city. It's called Sri Ganganagar. Okay. It's like at the corner of Rajasthan, border of Pakistan, Punjab and Rajasthan. मैं वहाँ पैदा हुआ था और मेरी फैमिली भी वहीं से बिलोंग करती है. My father moved here 25 years ago to start his own business. वो वहाँ पे बिजनेस करते थे, कुछ नया करना था उन्हें, तो वो दिल्ली आ गए थे. ठीक है. Right, and then he started his business here. I was brought up in Noida. So my entire family is of businesses. Okay. Like cousins, उनके बिजनेस है, मेरे जितने अंकल्स हैं उनके बिजनेस हैं, फादर का बिजनेस है. हम मारवाड़ी लोग हैं, हम बिजनेस ही करते हैं. बिल्कुल. राइट, हम लोगों को समझ नहीं आता है, ऐसा सिखाया गया है. सो दैट्स वेयर बिजनेस ही कर रहे हैं सारे. एंड इट्स अ वेरी स्मॉल फैमिली हियर. देयर इज अ सिस्टर, देयर इज अ मदर. या सर, टू टाइप ऑफ फैमिलीज है जिनके फादर, मदर या फैमिली मेंबर्स दे डू बिजनेसेस, एंड द अदर टाइप जहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं. सो मेरा एग्जांपल लें तो मेरे फादर, मदर ऑल वर डूइंग जॉब्स, एंड आई हैव सीन एन इकोसिस्टम वेयर जॉब करके ही आगे बढ़ा जाता है. एंड आई एम द फर्स्ट वन हु हैज स्टार्टेड एनी बिजनेस इन आवर फैमिली. How was your relationship with money when you were, let's say, in school and then in college and then when you started your venture? I want to understand your thinking about money. How do you utilize it? How do you think about it? there are two things to it. One is situation. Second, what I am taught. And with this teaching, what I've seen. Right? So I will tell you about the situation first. When my father started business, we had very little money. Right? As a family of 4 surviving in a city like Delhi, it was just survival. कि hand to mouth situation है, इतना पैसा है उतना खर्चा हो गया. एक मुझे याद है अच्छे से, एक कॉपी रखते थे हम कि आज ना 20 रुपए का ये लिया है, 20 रुपए का ये, जो हम स्प्लिट वाइज कभी करते हैं ना, वो हम कॉपी में करते थे. हाँ, मेरे फादर रोज करते थे रात को. सो आई रिमेंबर दिस बिकॉज मनी वाज वेरी क्रूशियल फॉर अस. वी डिड नॉट हैव अ लॉट. Over time, he made money. Over time, this privilege came to me that I have money now, I can spend more. But we were always taught that money is temporary. Right? Don't spend a lot today. You have to save more for tomorrow because you never know what can happen tomorrow. So this idea was in my head. जो बोलते थे ना, ये बंदे कंजूस है. कंजूस नहीं है हम समझदार है कि हमें सेव करना है, कल के चलो क्या हो जाए हमें नहीं पता. Right? So that's where this was taught to us, that save money for future, no matter how much you make. When I was in college, we were given a very limited money. कि आप हॉस्टल रह रहे हो, आपसे कहीं रह रहे हो, आपको इतना ही मिलेगा महीने का, जो करने करो. राइट?
उस टाइम मुझे रियलाइज हो गया कि इतना पैसा ना इनफ नहीं है, क्योंकि मेरी अब शौक बढ़ गया है, मेरी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। क्या कर रहे थे ऐसा? मैं पार्टी कर रहा था, मैं कॉलेज में था, मैं 4 साल की इंजीनियरिंग वेकेशन पे था, सो ऑफ कोर्स आई नीड मनी, बट ऑफ कोर्स आई न्यू कि माय फादर विल नॉट गिव मी मोर मनी एंड देयर इज नो रीजन आई शुड आस्क आल्सो, राइट? मैं क्यों मांगूं उनसे? उन्होंने जितना देना है देना है। So my relationship changed with money there. Okay. Then I realized I do need money, because with time, when I'm growing, when I have a social circle, when I really want to do some things, I want to buy some things, I need money, right? And that's where this struck me कि या तो बहुत अच्छा जॉब चाहिए मुझे लाइफ में, या मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जहाँ से मैं पैसा कमा सकूँ, राइट? तब वो मनी ज़रूरत थी, right? Then I started doing a job. Okay, this was career when I'm making my own money. Now I have salary, good salary for a fresher, I would say. I was making good money in Bombay. Then I realized that money is not making me happy anymore. Okay. Because now मेरी ज़रूरतें, मेरे शौक धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। मुझे अपने माँ बाप से कुछ मांगना नहीं है, बट मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, because that money is just lying in a bank or in my investments or whatever. मजा नहीं आ रहा की डेफिनेशन? मज़ा नहीं आ रहा है मतलब कि पैसा किक नहीं दे रहा, ठीक है। राइट? मतलब मुझे अब समझ में आ गया पैसे कमा सकता हूँ, इतना समझ में आ गया कि आई कैन डू समथिंग एंड आई कैन मेक मनी, आई विल ग्रो इन द लैडर ऑफ कॉर्पोरेट, लेट्स से। उस टाइम मुझे बिजनेस का भी इतना आइडिया नहीं था कि करना ही नहीं करना, मुझे इतना पता है मैं कॉर्पोरेट में लैडर अप भी कर लूंगा, आई विल मेक मनी। आई हैव सीन पीपल अराउंड मी हु आर मेकिंग मनी, हु आर इन द सेम कंपनी एज मी, दे आर मेकिंग गुड मनी, सो आई नो मनी कैन बी मेड। सो किक नहीं मिल रहा है कि अब करना क्या, राइट? बिकॉज अगर पार्टी करनी है वैसे, घूमना फिरना है वैसे, राइट? कुछ खरीदना है वैसे, वी हैव इनफ, इतना है, मतलब बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन वाला वो एंगल है, but that is not satisfying enough. So then my relationship with money changed. Okay. Then it became something that, yeah, it's important, but probably it's not primary for me anymore. I do want to make a lot more, of course, that there is no cap to it. वो बनाओ. But that cannot be the agenda, that can be the outcome. Agenda can be something different. बिल्कुल। So that changed over a period of time. Today, of course, I acknowledge my privilege. I come from a privileged family. I know there is money in my family. There is no way nobody stopping me from spending anything. Even if I don't have that much with me, I'll ask my father, he'll give it to. Right? So the relationship is very secondary now. It's not primary anymore. We don't discuss money anymore. That book जिस पे लिखते थे हम, वो खत्म हो चुकी है book. The discussion is over now with the money. So ये relationship है अभी। अभी रिलेशनशिप जैसे मनी का सेकेंडरी हो गया, देन आई थिंक इस टाइम पे पर्पस कम्स फर्स्ट, Purpose. राइट? Money is outcome, as I Yes. said. Money is always an outcome. If the purpose is fulfilled, money will come. एंड व्हाट्स द पर्पस नाउ? Purpose is to do something that makes me happy every single day, make me excited every single day. It can be small, it can be big. If it is putting some impact also with people, amazing. That's like again an add-on to the entire purpose. But majorly, I should be driven. Every single day, if I'm waking up, there should be something I should be looking forward to. Simple. जैसे जॉब्स मेरी जितनी भी रही हैं, हमेशा इंटरेस्टिंग जॉब्स रही हैं, कभी मैंने कंप्लेन नहीं किया अपनी जॉब को लेके, बट मेरा प्रॉब्लम हमेशा ये होता था कि अब मुझे पता है कि ये तो आ गया, इतना करना आ गया, मुझे नेक्स्ट क्या, वो नेक्स्ट नहीं मिल रहा था मुझे, राइट? यहाँ मुझे रोज कुछ नेक्स्ट मिल जाता है। अच्छा। अपने खुद के बिजनेस में जब हम स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ना, हमारे पास कोई मैनेजर नहीं है। जब मैनेजर नहीं होता तो आपको टास्क खुद को देने पड़ते हैं, और टास्क जब खुद को देने पड़ते हैं, टास्क ढूंढने पड़ते हैं। सो उस ढूंढने वाली जो जर्नी में एक्साइटिंग पार्ट होता है ना, वो निकल आता है कि अच्छा ये भी तो करना है, अच्छा ये भी तो सीखना पड़ेगा, अच्छा ये भी तो नहीं आता मुझे। सो आई थिंक दिस एंटायर थिंग मेक्स मी फील दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। सो दैट इज माई पर्पस, टू फाइंड समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी, सिंपल। बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल। यश, प्रिविलेज, कुछ लोग तो प्रिविलेज को समझते हैं कि यस हमारा ये प्रिविलेज है, हम ये कर पा रहे हैं या ये हमारे साथ है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट समटाइम्स वी इग्नोर इट एंड हम अपनी लाइफ में क्रिब करते रहते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें अगर किसी के पास है तो वो प्रिविलेज हैं? आई वॉन्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रिविलेज कि हम किन चीज़ों को रोज ग्रेटिट्यूड की तरह देखें और उनको रोज अप्रिशिएट करें कि यार ये मेरा प्रिविलेज है। व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? It's a very simple definition. I feel if you are healthy enough to do something, and you are young or old, doesn't matter, but healthy enough to think right, do right, act right, you're good to go. You're privileged, right? See, if you have little money also, then you can also do a lot of things. कॉलेज में बच्चों के पास बहुत पैसे नहीं होते, तब भी कॉलेज में लोग अपने बिजनेस बना लेते हैं, राइट? क्योंकि वो ड्रिवन है, वहाँ पैसा मैटर नहीं करता। अगेन, अगर आपके पास बहुत पैसा भी है तब भी प्रिविलेज है, राइट? बट अगर आप काम कर पा रहे हो, आप हेल्दी हो इतने कि आप सोच सही पा रहे हो, एक्ट कर पा रहे हो, गुड टू गो। दैट्स वेयर आई फील इट्स अ प्रिविलेज थिंग, राइट? एंड
it's only because of today when you have अगर छोटा सा 5,000 का फोन भी है आपके पास, आप 1000 चीजें कर सकते हो उसमें से. So that's the privilege. इतना ही चाहिए आपको, और कुछ चाहिए नहीं. अगर उसमें आपका पर्पस निकल गया, आपका ड्राइव निकल गया, किक निकल गई, good to go. Nice. And in your job, what kind of personality you had? क्योंकि जैसी पर्सनैलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी करियर जर्नी शेप अप होती रहती है. तो किस तरीके से आप अपने जॉब को देखते थे? व्हाट वाज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर जॉब व्हिच यू आर अप्लाइंग टुडे इन योर स्टार्टअप? Yeah, so my personality, I'll tell you in 2 words. I've always been a social and extrovert guy. Okay. Always. During my school also, college also, I used to be that guy जिसको ना limelight चाहिए, कि उसको limelight मांग रहा हूँ मैं, कि हर जॉब टेंशन चाहिए मुझे, right? So I used to be that guy, which made me very non-serious about everything. Very casual, very fun, talking about anything and everything, trying to be a part of everything, right? Doing multiple things. Even if I'm losing sleep, I'm all right. I just need to be there. मुझे FOMO नहीं चाहिए. I used to be that guy, right? Then when job happened, my job was investment banking. I don't know a lot, I don't know if a lot of people know of how investment banking is, but it's more like you have to be super, super serious about each and everything. And those people are probably the most professional people. They don't want a single mistake here and there, right? I was not that guy. मैं घुसा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में with a dream कि I'll just be a banker in London or in New York, and I'll be making a lot of money, ये वो. I realized it's not for me because I'm not able to catch up with this attitude, which needs to be serious. And there's nothing wrong to be serious. There's nothing wrong with it, right? But मुझसे नहीं हो रहा. I was just casual. कि मुझे लोगों से बातें करनी है, मुझे फन करना है, काम भी कर लूंगा, काम में कुछ खराबी नहीं होगी. बट मैं पूरे टाइम ऐसे बैठ के ना एक्ट नहीं कर सकता कि मैं काम कर रहा हूँ. बिल्कुल वो मुझसे नहीं होगा. Which made me realize कि ना मेरा मैनेजर मुझसे हैप्पी है, ना मेरी टीम मुझसे हैप्पी है, ना मैं खुद से खुश हूँ कि यार मैं जिस तरह रहना चाहता हूँ रहूँगा, देंगे नहीं मुझे ऐसे. So that's where character development happened for me. I realized that I need to do something where I can be myself. It can be fun, it can be serious also, it can be non-serious also, but it has to be fun for me and for the people working around me, so that crib, जो लोग crib करते हैं वो खत्म हो. कोई ये ना बोले कि यार ऑफिस में ना मौत ही आती है. ऑफिस में मौत नहीं आती है भाई, ऑफिस में काम भी आता है, मजे भी आते हैं, right? So that's how I developed my career. That I shifted to another bank, and I shifted to another fund, and I found my people, I found my cake. I always realized that कि मुझे सेल्स करने में बड़ा मजा आता है. बिजनेस करना है सेल्स ओनली, बेचना है आपको, राइट? मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है, मुझे कन्विंस करने में बहुत मजा आता है, राइट? सो मेरा लास्ट जॉब जो था उसमें आई वाज वर्किंग विद अ फंड, आई वाज रेजिंग मनी फॉर स्टार्टअप्स. इट वाज जस्ट टॉकिंग विद पीपल. इट इज़ द बेस्ट पार्ट, टॉकिंग विद पीपल. उनकी लाइफ सुनो, उनके जर्नी सुनो, उनके बारे में समझो, कैसे लोग क्या कर लेते हैं, कितनी बुद्धि लगा लेते हैं, और सीखो, और उसको फिर एम्प्लॉय करो अपनी लाइफ में. आज भी मैं वही करता हूँ अपने बिजनेस में, पहले भी मैं वही कर रहा था और मुझे बहुत मजा आता है. सो आई रियलाइज कि I just want to be this person who wants to do things that makes the environment very fulfilling, very satisfying, and the next day you have something to look forward to. So this is what I think in the journey of my career I've done this. बिल्कुल, I think beautifully. I think you are explaining things very beautifully. क्योंकि इसी तरीके से ट्रेजेक्टरी दिखती है किसी को भी अपने करियर की when they shift from let's say college to job and then to doing their own venture. 100%. कॉलेज में हमने बोला पार्टी कर रहे थे, बट मेरे को पक्का पता है इंजीनियरिंग कर रहे थे तो कुछ ना कुछ और क्यूरियोसिटी या ये सब भी रही होगी. कैसे बिताई अपनी, और सेम बैच के हम 14 to 18. Yeah. तो कैसे बिताई आपने अपनी इंजीनियरिंग जर्नी? Yeah, so I was the kid who used to be, अपने घर पे बहुत रहता था. मैं बाहर निकलता नहीं था इतना कि मुझसे अगर बात भी करनी है ना, मेरे घर ही आ जाओ, आराम से बैठ के बात करेंगे. खेलने चल सकते हैं बट हम बात घर पे करेंगे. मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं था. ऑफ कोर्स वो मनी और रिलेशनशिप भी होता है उसमें कि पैसे लग जाएंगे बाहर जाएंगे तो, लेकिन साथ साथ वो भी था कि घर पे रहो तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है. मम्मी को भी बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं रात के 10 बजे बाहर जाना. सही बात है. कॉलेज जब मुझे भेज दिया तो वो बात हो गई कि हमने शेरों खुला छोड़ दिया, राइट? अब बंदा कुछ भी कर सकता है. मैं फ़ोन भी काट सकता हूँ घर वालों को कि मैं बाहर हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं क्लास में, ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. तो तब मैं खुल गया. एंड एक और चीज़ होती है, बहुत लोग ये रियलाइज़ करते होंगे कि जब आप कॉलेज में स्कूल में शेयर होते हो ना, आप कॉलेज में शेयर नहीं होते हो क्योंकि आपके बाप बैठे हो, right? You know this much, and there are people who know this much. Then I realized these people are too damn smart. Yes, they know everything. मगर अगर मैंने एक बुक पढ़ी है, इन्होंने 100 बुक पढ़ी है, तो मैं वहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स में आ गया. फिर मुझे कैचअप करना था. यार मुझे ना ये कैचअप करना है, ये जो गैप आ गया है ना, हम सेम बैच के लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे कैचअप करना है. मैंने कहा पढ़ाई तो करो साइड,
ये तो मैं एक रात पहले भी पढ़ लूंगा पेपर पास करने के लिए, बिल्कुल मुझे करनी है बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो मूड कोर्ट हो, राइट, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी करना है, आई वॉज देयर. So my entire 4 years, I was just doing things that were around me as extracurricular, as competition, as anything that used to have, you know, some element of कि I can win here. मैं वो चीज़ें करता था, ठीक है. और अगर कहीं पे कैश प्राइज होगा तो वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मेरे को पैसे भी चाहिए. तो ये 4 साल मैं करता रहा, ठीक है. आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, आउटसाइड कॉलेज, राइट. अगर मुझे कोई बोल रहा है कि यार ये नई चीज़ है, हम भी सीखेंगे, तू भी सीख, मैं वो भी करता था. और वो टाइम ना वो था जब ना ये सारे स्टार्टअप्स आ गए थे. बिल्कुल. जोमेटो का डिलीवरी शुरू हुआ था पटियाला में. हाँ. मैं पटियाला में पढ़ाई कर रहा था, हाँ. थापर यूनिवर्सिटी, थापर. राइट. जोमेटो का डिलीवरी स्टार्ट हुआ एकदम से, सब ऐसे हो गए, अरे डिलीवरी हो रही है. अभी तक सिर्फ डोमिनोज ऑर्डर होता था, अब बहुत चीज़ें कर सकते, राइट. उबर पहली बार आया था हमारे पास, ओला पहली बार आया था, राइट. ओयो कॉन्सेप्ट आ गया था. वी हैड टू मेनी थिंग्स Yes. एंड वी वर जस्ट क्यूरियस एंड इट वाज टू डैम चीप आल्सो. Yes. कि ओला बोल रहा है आपको मैं 500 रुपए कूपन दे दूंगा. हमने कहा भाई ऑटो छोड़ो तो गाड़ी से जाएंगे पटियाला में, राइट. सो इतना क्यूरियोसिटी हो गया था दैट वी ऑलवेज थॉट लेट्स डू समथिंग, लेट्स मेक मनी, लेट्स डू समथिंग, लेट्स मेक मनी. सो माय टुडे माय co-founder Anant, he is my college friend by the way from first year itself, and both of us thought then also let's do a business together. Oh. So 2015 we thought यार कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी पैसे चाहिए हमें, let's do something. So हमने क्या किया, हमने टीयर 3 सिटी था उस टाइम तो पटियाला, फिर टीयर 2 हो गया, ठीक है. तो बसेस चलती थी बहुत कम. मतलब दिल्ली के लिए बस चलती थी अच्छी वॉल्वो 2, चंडीगढ़ के लिए 2, लुधियाना के लिए 2, जयपुर के लिए 2. हमने कहा बस चलाते हैं कॉलेज से सारे बच्चों के लिए हर वीकेंड, जयपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली. क्या बात. फ्राइडे की शाम को बस आएगी कॉलेज, चारों बसेस संडे की शाम को अपनी अपनी सिटी से उठा के रात को यहाँ पे ले आएगी. वीकेंड्स तो बहुत लोग कर जाते थे. लेट्स मेक गुड मनी आउट ऑफ दिस. 500 की टिकट उनकी होती है, हम बेटर बस लेके आएंगे, 600 रुपये की देंगे, एक सैंडविच भी खिलाएंगे, अच्छा. और सब बच्चे खुश, हम बनाएंगे पैसे. हाँ. तो हमने 6 महीने किया and we made good money. Then we realized we don't know how to do business because we were just making money. We were just ripping off people's pockets. We were not doing a business. हम कुछ नहीं बेटर कर रहे थे. और 6 महीने में रियलाइज हो गया कि ये अब लोग हमें जिससे पहले गाली देते हैं इसको बंद कर देना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. सो मैंने ये भी किया. एंड थर्ड ईयर में आते आते मुझे रियलाइज हो गया था इंजीनियरिंग तो मैं कर ही नहीं सकता. अगर मैं इंजीनियर बन गया तो कोई ना कोई कंपनी बंद होगी, पक्की बात है. सो मैं, कौन सी ब्रांच थी? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. सेम भाई. हाँ. और मैं सोच के गया था कॉलेज कि एक दिन आईफोन के चिप मैं ही बनाऊंगा, सोच के गया था मैं. तो वो थर्ड ईयर में रियलाइज हो गया कि मेरे पास तो आईफोन भी नहीं है, तो मैं रहने ही देता हूँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्यों बेइज्जती कराऊँ मैं प्लेसमेंट सेल जाके. फिर मैंने फटाफट लिस्ट निकाली कि नॉन टेक कंपनीज कौन सी आती है, कोई मुझे ले जाए ताकि मैं माँ बाप को बता दूँ कि मैं जॉब भी कर सकता हूँ. So that's how banking happened for me. अच्छा. And yeah, I mean, that was more like my college. I was just having a ball of my life. हाँ. That was the best part of whatever I've done till today. So learned everything there, I would say. Learned how to learn. Learned how to learn, I would say. बिल्कुल. Right. अगर आपके सामने कोई बैठा है जो आपसे बहुत ज़्यादा skilled है, experienced है, हाँ. उससे किस तरह सीखना चाहिए, बिल्कुल. मैंने ये सीख लिया कॉलेज में. मैं तो यही कहूँगा भाई कि आज कोई भी कॉलेज में है और जो अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, कोई भी कॉलेज, कोई भी डिग्री, कुछ भी कर रहा है, अगर आप कॉलेज में सिर्फ आ रहे हो, जा रहे हो घर, तो आप अपनी ज़िंदगी के सबसे गोल्डन ईयर खराब कर रहे हो. घर जाना ही नहीं चाहिए. मतलब घर तो जाना ही नहीं, घर भूल जाओ घर भूल जाओ और क्लास भी भूल जाओ. क्लास में भी मत रहो. मैं मत करो इन 2 चीज़ों में से. तो अगर आपकी मम्मी को घर बुला रही है, फ़ोन काट दो. बिल्कुल. घर जाना ही नहीं चाहिए. मैं तो मानना ही है. और मतलब इतनी तोड़फोड़ मचानी चाहिए जितनी मचा सकते हो. 100%. मतलब शरीफ होने का भी फायदा नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल ही स्पॉइल होने का भी फायदा नहीं है. make you humble in life. Yes. For sure. यस. वो ह्यूमिलिटी अपने आप आ जाएगी. Yes. आप चाहे कितने भी बड़े घर से क्यों ना आए हो, आप चाहे कितने स्किल्ड क्यों ना हो, आप हम्बल हो जाओगे कॉलेज जाके, क्योंकि आपसे बेटर कोई ना कोई होगा और वो आपको बता देगा कि लाइफ में भी आपसे कोई ना कोई बेटर होगा. बिल्कुल. तो आप हम्बल बन जाओगे. आप- वही चाहिए. करेक्ट. और एक ना कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो जाएगी. जैसे हम 3 दोस्त थे, जो आज भी 3 दोस्त हैं कॉलेज के निकले हुए. हम तीनों की जो लेट्स से बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, तीनों का ही बहुत डिफरेंट है. ठीक है. लेकिन तीनों की सोच इतनी तोड़फोड़ मचाने की है कि मतलब हमने इंजीनियरिंग के लास्ट 2 साल में तो क्लासेस बहुत ही कम ली. हमने एचओडी को बोल दिया हम बना रहे प्रोजेक्ट, तो हमें दे दो कॉलेज का बेसमेंट. कोइंसिडेंटली स्टूडियो भी बेसमेंट में है, तो हमें दे दो कॉलेज का बेसमेंट और हम इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्कशॉप्स लेंगे.
और इतना मजा आया, मतलब आज मैं रिग्रेट नहीं करता। तो कोई भी ये कंटेंट देख रहा हो, अगर वो कॉलेज में है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कॉलेज लाइफ वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। 100%. I always say this to a lot of people. मेरे cousins हैं छोटे छोटे, सबको मैं बोलता रहता हूँ कि यार तुम्हारे पास ना कॉलेज में टाइम बहुत है. मेरा रिग्रेट सिर्फ इतना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था उस टाइम, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा था मेरे पास, मैं बता ही नहीं सकता. मैं सोता 3-4 घंटे था, क्योंकि उतनी नींद होती थी मेरी उसमें. हम मज़े कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं. बट अगर इतना टाइम है, do something so productive that you would be proud of. Right. And it's easy now. It's so easy now. Like you have a good smartphone, you have hundreds of free resources, you can learn like anything. I mean, it's so easy. Yes. Right. If today I can also, just sit down for 2 hours, learn something on AI or anything, I can do it right now. You can do so much more. बिल्कुल So that's what I feel. कि भाई college time is just golden for you. You have so much time because आगे time नहीं मिलेगा फिर. बिल्कुल नहीं मिलता। आप एक बार जॉब चले जाओगे, आप कुछ और करोगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा. आपको क्रिप भी तो करना है उसके बाद 1 घंटा. So टाइम नहीं मिलेगा आपको. सही बात है। आपने अनंत के बारे में बताया, और वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से आपका फ्रेंड है। ये जो को फाउंडर रिलेशनशिप है, ये कैसे डेवलप हुआ अनंत के साथ? Yeah, I think some things are meant to be is what I always feel. Some people who are with you for the last 10, 12 years, 15 years, they're just meant to be. Right? We met on the first day of college. We, gelled up like this. Clicked. कि भाई ये तो बहुत बहुत सही इंसान है, उसने बोला बहुत सही इंसान है, बढ़िया. तब से दोस्ती हो गई. हमारी ब्रांचेस बहुत अलग थी, हमारे ग्रुप्स भी बहुत अलग अलग थे फ्रेंड्स के, बट वी ऑलवेज स्टेड इंटैक्ट. Right? Even after, after college, my journey was very different. I was doing banking, finance, so many things. He was doing marketing, branding, content. हमारे life इतना different है. But we were just in touch all that time. So it becomes a habit बन जाता है कि जैसे अगर आज हम दोस्त बन जाएं बहुत अच्छे, मुझे आपके बारे में ना इतनी चीजें पता होंगी कि आप क्या बोलने वाले हो नेक्स्ट, मुझे ये भी पता होगा. राइट? आप क्या सोच रहे हो मुझे पता होगा. दैट्स द रिलेशनशिप आई शेयर विद अनंत. जिस दिन मैंने उसको बोला कि लेट्स डू दिस टुगेदर, उसने सोचा भी नहीं. कहता हाँ ठीक है, डिजाइन मार देता हूँ. ईजी, एज ईजी एज इट कुड बी. मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी. उसने अपने फादर को बोला मुझे बिजनेस करना है. उसके फादर ने बोला किसके साथ करना है. उसने बोला यश. अंकल ने बोला ठीक है, डन. So it becomes like a relationship where you know that this can be done. And I think it also comes from the fact that we have done something together before. So उसको पता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को पता है कि वो क्या सोचता है. It's easy, right? बहुत disagreements होते हैं हमारे, वो ज़रूरी भी है होना. बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हमारी, but दोनों को पता होता है कि यार मंजिल लेके ना चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा. बिल्कुल बिल्कुल. Comes to your brand Karvi, and हमने शार्क टैंक में भी देखा, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे, और आई थिंक लोगों को बहुत ही हेजिटेशन होती है बात करने के लिए, ऐसा नोटिस किया हमने. बट क्या क्वेश्चंस आप फेस करते हो अपने ब्रांड को लेके, अपने लिए? और आई थिंक अब तो सबको सेटल इन हो गया होगा, बट व्हेन यू वर स्टार्टिंग, what kind of hesitations were coming in from left, right, center, or everything was chill for you? Was it easy, tough? What was it? I won't say it was tough. Of course, hesitation was there from a lot of people. More than hesitation, it was silence, I would say. Right? बोलना ही नहीं है, बात ही नहीं करती इस बारे में. Right? But I think all in all, when you have a family behind you, तो फर्क नहीं पड़ता. वो वाली चीज़ है ना, आप मुझे क्या बोलोगे, मैं किसको क्या बोलूँगा, फर्क ही नहीं पड़ता. मैंने अपनी स्पेस में करने, आपसे कुछ मांगा ही नहीं मैं. बिल्कुल. Right? So I think it was easy from the fact that my family understood very well, took it up very, very well. Since we are coming from a place which is too conservative, we're coming from a place where businesses are not like, brands or retail or anything. मतलब अगर आपको राजस्थानी इसके बारे में पता हो, मारवाड़ी के बारे में पता हो, ये हम B2B वाले लोग हैं. ये हम वो धंधा करते हैं पीछे वाला जो दिखता ही नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये शायद मक का जो मटेरियल होगा वो वाला काम कर रहे होंगे. लिटरली यही होता है. राइट? सो उनके लिए बस वो समझना बड़ा डिफिकल्ट था कि हाउ वुड यू एंड अप डूइंग रिटेल, बिकॉज दैट्स वेरी डिफरेंट बिजनेस. वी हैव नॉट डन इट. वी कांट इवन गिव यू ऑल लर्निंग्स टू यू. कि आप मुझसे अगर मांगने भी आओगे कि पापा थोड़ा सिखा दो, मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा. तो उतना हेजिटेशन था. बाकी दे टुक इट अप वेरी वेल. ऑल्सो उनको रिस्क असेसमेंट आता है. जो बिजनेस फैमिली से आते हैं ना, उनको रिस्क असेसमेंट आता है कि कैसे रिस्क देखा जाता है, क्योंकि रिस्क वो भी लेके आए हैं लाइफ में. राइट? सो उनको ये पता होता है कि गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन. बहना नहीं है लाइफ में, डेडलाइन दे दो अपने आप को कि इतने तक ट्राई करूंगा, उसके बाद नहीं हुआ तो छोड़ूंगा, उसके बाद हो गया तो कंटिन्यू करूंगा. ठीक है. सो मेरे लिए डेडलाइन 2 साल थी. मैंने MBA नहीं किया हुआ लाइफ. ये मेरा MBA. मेरे को 2 साल दे दो मेरे MBA के. अगर MBA अच्छा हो गया तो चल पड़ेगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो लर्निंग्स लेके चुपचाप वापस जॉब ले लेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन, और आई विल कंटिन्यू माय बिजनेस विद यू. राइट? सिंपल.
So that was a very well good decision for everybody because now everybody knows कि भाई clock is ticking. ठीक है. So यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी 2 साल बाद अगर नहीं चला तो, और चल पड़ा तो समझदारी से बढ़ाया जाएगा. बिल्कुल. Simple. So that support was everything for me, I would say. आज करवी को रन करते हुए कितना टाइम हुआ हमें? 2.5 साल हो गए मुझे. इंडिपेंडेंटली ब्रांड को हो गए हैं 20 महीने. 20 महीने. ठीक है. पहले 6 से 8 महीने करवी के कैसे बीते थे? टेल मी थिंग्स अबाउट इट. It was very different क्योंकि वो blank था. ओके. एक होता है ना कि कोरा कागज दे दिया आपको अब इस पे बनाओ, तो blank ही था. ठीक है, रोज you are scribbling something, you are cutting down, you are just crushing the paper and throwing it up. It was just the same for me. I left my job July 23. I started Curvy full time August 23. Came back to Noida to my home. Spent some time with my family first just to make everybody absorb that I'm starting something new. And then just started working, trying to figure out ये start होगा कहाँ से, entry point क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. Entry point नहीं मिल रहा है ना, राइट. बनाना तो क्या है वो मुझे दिख गया है, तो अब बनाना किसके साथ है, कैसे है, क्या सोर्सिंग होगी, क्या मार्केटिंग होगी, क्या ब्रांड नेम होगा, लोगो क्या होगा. Too many things, right? Too many things on my plate just in just one go. So it was very blank. कि रोज मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ क्या आज मैं खाली बैठा हूँ सुबह से, कुछ करूँ क्या, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है किसी और इंसान पे. कि आपने मान लो किसी को बोल दिया लोगो बनाने को, अब आप वेट कर रहे हो 5 दिन, बना कब आएगा मेरा लोगो, राइट. लोगो आ गया, मैंने उसको वेरिएशन दे दिया, अब 2 दिन फिर वेट करो कब आएगा मेरा लोगो. सो आई वाज जस्ट वेटिंग एंड इट वाज माय हाउस. मैं अपने घर से कर रहा था. ठीक है. मेरे घर में एक फ्लोर खाली था, मैंने पूरा खाली करके उस पर टेबल चेयर लगाया. आई हायर्ड 2 इंटर्न्स आल्सो दैट टाइम. ठीक है. आउट ऑफ निफ्ट. ठीक. सो इट वाज मोर लाइक कि मुझे कुछ नहीं पता भाई इंडस्ट्री के बारे में. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फैब्रिक डिजाइन R&D स्टफ. You guys are still, coming from a college with a degree. It'll be easier for you to grasp at least quickly, and then you can teach me. So that's how I hired 2 people. Anand was also there. So we were like 4 of us. And for 6 months, it was just figuring out. बनाए क्या, बनेगा कैसे, कौन बनाएगा, और 1000 से 2000 लोगों से मिलना, ताकि मैं समझ तो पाऊँ इस इंडस्ट्री में चलता कैसे है. बिकॉज मेरा इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट था पहले. कोई नेटवर्क नहीं है नई इंडस्ट्री में, कोई सोशल नेटवर्क नहीं हो रहा है. So I literally had to build a network. And this I feel I'm blessed with, that I have gotten a network very quickly, very easily. इससे बात की उसने, इसका नंबर दे दिया, उसने कहा, उसने इसका नंबर दे दिया, खच, domino effect. Went to somebody who was my man then. Okay. And then things started working out slowly and steady. Took 10 months. मैं बहुत घूमा. Delhi NCR, लुधियाना, सूरत, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिपुर, जगह बोलो आप. रिमोट एरियाज में गया हूँ जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, लोग नहीं होते, बस फैक्ट्रीज होती हैं. मैं वहाँ भी गया हूँ. सो आई हैव डन दिस थिंग जस्ट टू बिल्ड अ नेटवर्क, जस्ट मेक श्योर पीपल रिमेंबर देयर इज अ नेम व्हिच इज कमिंग डाउन देयर. This may not work today, but tomorrow it will work for sure. So I'm just building a network today. So I did that for 10 months. And then when I found my things, these are the products I want to do, this is the brand name, this is the brand image, I launched it in May 24. Okay. It took 10 months. 10 months तो launch करने में लगे हमें. So those 6, 8, 10 months were just, figuring out. मतलब वो होता है ना कि 100 लोग ज्ञान देते हैं, अब करना कैसे 100 लोगों के ज्ञान का, फिर वो ज्ञान काम नहीं है तो नया ज्ञान कहाँ से लगेगा, वैसा. और भाई प्रोडक्ट बनाने की और टेस्टिंग की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग कर्व बहुत हाई होता है, क्योंकि हमें पहले तो हम अपनी अजम्पशन पे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं कि ये सही लगेगा, इस प्रोडक्ट में ये कमी है तो हम अपने प्रोडक्ट में ये इम्प्रूव करते हैं, एटसेट्रा. पैकेजिंग पे काम करते हैं, हमारी अजम्पशंस और एक रिसर्च से प्रोडक्ट बन रहा है. बट जब वो मार्केट में उतरता है तब उसका रियल टेस्ट होता है. तो वो जो पहले 100 प्रोडक्ट आई वुड से जब आपने सेल किए थे, किस टाइप की लर्निंग्स आ रही थी, कैसे प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ है? लेट्स से आज जो करवी में हमारे प्रोडक्ट लाइंस हैं, जो भी हमारी कैटेगरीज हैं, आज वो कैसे डिफरेंट होते गए वर्सेस जब आप स्टार्ट कर रहे थे वो कैसे थे? So when we started, we always knew that this can go wrong. So just be very cautious whatever we launch, right? Initially, we made a group of 500 people. 500 people out of our own network. Friends of friends, family, जितने भी women possible थे हमारे around. Of all ages, of all body sizes, of all geographies, I would say. कोई बॉम्बे है, कोई चेन्नई है, कोई बैंगलोर है, कोई दिल्ली है. ठीक है. हमने सबका ग्रुप बना लिया. ठीक है. और हमने क्लियर किया ये सैम्पल्स जो भी आएंगे ना, let's just rotate these samples amongst all these people so that we get a lot of feedback. Okay. The great part with this entire process is people who really want to support you, they'll give you a very critical feedback. बिल्कुल. मतलब बारीकी में बताएंगे, चाहे वो कंफर्टेबल है और तब भी घुसेंगे कि यार इतना सा पार्टनर अच्छा ही नहीं लगा, बिल्कुल. जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है.
right? So we did that. Then we launched. उसमें भी again we were trying to see कि यार wastage कुछ नहीं चाहिए मेरे को ना कम से कम products में launch करके कम से कम SKUs मंगा के just launch it ताकि मैं बस 100 कपड़े बेच के ना पहले रियलाइज कर लूँ इसका फीडबैक है क्या. फिर हमने वो किया ना मार्केटिंग स्पेंड ज़्यादा किया उस टाइम ना कुछ और इंस्टाग्राम के थ्रू जितना ट्राई कर सकते किया. ठीक है. एंड वी गॉट 100 कस्टमर्स, वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक. पहला बैच तो अच्छा था ही नहीं हमारा, मुझे अच्छे से याद है कितने लोगों ने गालियाँ दी हमें, ये क्या बेच दिया हमें. Return money also. But it was a great learning because now I know what is wrong, what cannot work at all. बिल्कुल. Some hypothesis was clear, right? Then we reworked. We made the same products with better things, better raw materials, better construction patterns, better sizing, better fits, and we relaunched. Then things started working. Okay. But one thing remained consistent, and till today we do the same thing. We take feedback very, very seriously, and we take feedback from everybody. जो मेरा फोन उठा लेगा मैं उसका फीडबैक ले लूँगा और मैं रोज करता हूँ ये. मेरे पास टीम है आज 3 लोगों की. अर्लियर आई यूज्ड टू डू इट माई सेल्फ एंड माई सिस्टर यूज्ड टू हेल्प मी आउट विद द फीडबैक. बट टुडे वी हैव अ 3-member टीम. आई आल्सो डू कॉल्स, अनंग आल्सो डज कॉल्स. बाकी टीम डिजाइनिंग वाली भी करती है कॉल्स, सब कॉल्स करते हैं ताकि ना कुछ भी नया पता चल जाए. अच्छा है, बुरा है, कोई नया प्रोडक्ट मांग रहा है, किसी ने कोई ऐसा इंसाइट दे दिया जो हमने सोचा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोडक्ट है ऑल डे कंट्रोल शेपर. ठीक है, इट्स लाइक एन ऑल डे शेपर, पूरे दिन पहन सकते हो. ठीक है. हमें पहले महीने किसी ने इंसाइट दिया कि यार मैं ना अभी डिलीवर किया है बेबी, सो पोस्टपार्टम चल रहा है मेरा, माई स्किन इज अ बिट लूज. यस. आपका शेपर मैं जैसे ही पहनती हूँ आई फील वेरी फाइन. ऐसा फिर हमें 5 लोगों ने बोल दिया. तो हमने कहा अब इसको शायद मार्केट कर सकते हैं कि दिस इज गुड फॉर योर पोस्टपार्टम जर्नी, व्हिच इज अ वेरी क्रूशियल जर्नी इन योर लाइफ एज अ वुमन. एंड इफ दिस गारमेंट इज हेल्पिंग यू आउट, इट इज अ वेरी नाइस गारमेंट फॉर यू. Now those insights I couldn't have gotten from my focus group. बिल्कुल. वो मेरे को कस्टमर ही बता सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन. एक कस्टमर ने बताया कि आपका कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है. मुझे नहीं पता था. अच्छा. वो मुझे किसी ने बताया क्योंकि वो ट्रैवल बहुत करती है. तो उसने बोला कि यार मैं लॉन्ड्री फटाफट करवाती हूँ, मुझे जल्दी निकलना पड़ता है, बहुत जल्दी सूख जाता है आपका कपड़ा. इट्स गुड फॉर मी. These are good insights. So now I can use these insights to build new products, unlock new customers, unlock my marketing, unlock my understanding of this category. That was a necessity. So till today, we follow this and the graph goes up there. ये प्रोडक्ट और बेटर हो जाएगा, अब कस्टमर को और अच्छे से समझा सकते हैं, अपनी मार्केटिंग बेटर कर सकते हैं, उस इनसाइट्स को यूज करके हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं. बिल्कुल. सो ये जर्नी बहुत सॉलिड बन रही है हमारी एज अ फाउंडेशन. Then like in the initial stage, we are still in the initial stage as we speak, but हम हमारा जो प्राइसिंग होता है, हमारा जो क्वालिटी होता है और हमारा जो मार्केट का टारगेट ग्रुप होता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट चेंजेस विद टाइम. तो लेट्स से व्हेन यू लॉन्च्ड योर फर्स्ट फ्यू प्रोडक्ट्स टू टिल टुडे, प्राइसिंग कैसे चेंज हुई, क्वालिटी किस टाइप से चेंज हुई, इवॉल्व हुई, और मार्केट के टारगेट ग्रुप्स अब कैसे चेंज हो रहे हैं, हु आर मेजर कंज्यूमर ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड ऑल. सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट प्राइसिंग. ठीक है. एक होती है थ्योरी कि आपने जो खुद रिसर्च मारा है उस पर आप देख रहे हो कि भाई ऐसा प्राइसिंग मेरे प्रोडक्ट का होना चाहिए बिकॉज दिस विल पोजिशन माई ब्रांड सो वेल. दैट इज वन थ्योरी. सेकेंड इज व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग पीपल अराउंड कि आप कितने प्राइस में कंफर्टेबल, राइट. सो हमने दोनों चीज़ें की. पहले हमने जब प्राइसिंग लगाना शुरू किया थ्योरी के हिसाब से वो प्राइस लगाया एकदम पहले महीने में. उसके बाद हमने साथ साथ लोगों से पूछना हमें शुरू कर दिया कि यार अगर आपको सेम प्रोडक्ट दोबारा लेना हो तो क्या आप इस प्राइस पे ले लोगे. मुझे फ्रीक्वेंसी पे चाहिए ना. बिल्कुल. एक होता है कि आप एक महंगी चीज़ एक बार खरीद लोगे फिर आप सोचते हो दोबारा नहीं खरीद सकते, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. सो व्हाट आर यू कंफर्टेबल इन, दैट रियली हेल्प्ड अस आउट टू फाइंड आवर प्राइसिंग बिकॉज दैट फोकस ग्रू विद रियल कस्टमर्स ऑल्सो. सबने हमें बताया कि यार अगर आप उसको 100 रुपये कम कर दोगे ना तो आई एम ओके. या कोई बोलेगा कि नहीं आपका प्राइसिंग तो बढ़िया है, आप क्यों चेंज करोगे उसको, तो भी ओके. तो ऐसे हमने काफ़ी इंसाइट्स लेना शुरू किया. दूसरा क्वालिटी, नेवर डिग्रेड आवर क्वालिटी बिकॉज आई थिंक क्वालिटी इज समथिंग विच गिव्स यू रिपीट. क्वालिटी अगर खराब हो जाएगा ना रिपीट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो आपका शैम्पू क्यों ना हो, कुछ भी हो, अगर क्वालिटी खराब हो गया आप छोड़ दोगे, आप बोलोगे नया ब्रांड ढूंढते हैं, ये तो ब्रांड बकवास हो गया. ठीक है, वो हमने कभी नहीं किया. क्वालिटी हमेशा अपग्रेड ही की है जहाँ जहाँ पॉसिबल थी, वरना हमने स्टेबल रखा है कि अगर लोगों को पसंद आ रहा है उसको सेम रखो. मुझे ये नहीं चाहिए कि 6 महीने बाद वही कस्टमर आके बोल रही है अभी क्वालिटी थोड़ी अलग हो गई है इस बार, वो नहीं सस्टेन हो पाएगा. ठीक है. एंड थर्ड अगेन द TG. We always thought that an online innerwear brand is a very tier 1 thing. Yes. Right? कि एक इंसान जो आज बैंगलोर में बैठी है, बॉम्बे में बैठी है,
उसको समझ में आ जाएगा बड़ा आसानी से, इंस्टाग्राम पे देख के वो खरीद लेगी, वही प्राइस पॉइंट भी दे पाएगी और सब कुछ ठीक है. But we were wrong. Okay. Because in the second month itself, we started getting a lot of traction from tier 2 and tier 3 Online. online. We are completely online till today as well. Okay. There is no offline footprint as of now. Hmm. तो हमें tier 2 tier 3 से ट्रैक्शन आने लग गया और तब मुझे समझ आया कि यार tier 2 tier 3 में ना बहुत दम है, जितना दम tier 1 में भी नहीं है. राइट जैसे मैं आपको बताया, कम फ्रॉम अ tier 3 सिटी श्रीगंगानगर, बहुत पैसा है. आप कमा ही नहीं सकते हो उतना tier 1 में बैठ के. तो मैं लिख के देता हूँ, Lifestyle expense लाइफस्टाइल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है बट कमाई बहुत है. बहुत है. राइट और उनके पास एक्सेस नहीं है. प्रॉब्लम ये है, मॉल्स नहीं होते, हाई स्ट्रीट्स नहीं होते. राइट कोई स्टेकेशंस नहीं कर रहे हैं वो आसपास जाके. बिल्कुल. राइट रोज का कैफे जाके हॉपिंग नहीं हो रहा है, रोज का शॉपिंग नहीं हो रहा है. सो उनके पास एक्सेस नहीं है. दैट मेक्स देम ट्रैवल टू tier 1s and shop then, और they try to do a lot of shopping online क्योंकि नहीं हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग. तो हमें ये कस्टमर से ही समझ में आया कि एक कस्टमर से मैंने बात की थी, शी वॉज फ्रॉम आई रिमेंबर हिसार. तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा यार आपको कैसे डिस्कवर हुआ और आपने क्यों ट्रस्ट करके लिया फटाफट. शी वॉज लाइक इन माई ऑफलाइन स्टोर विच इज अराउंड मी, I only see a couple of brands which are legacy brands, the old brands, let's say a Jockey or something, and I don't have anything new. Yes. And if I want something new, I don't have access to it. I really have to travel to Delhi because that's closest for me. गुड़गांव दिल्ली जाना पड़ता है, एम्बुलेंस में जाती हूँ, फिर जाके मैं लेके फिर मैं वापस आती हूँ. And that's like too hectic for me as a shopping time, and I can only plan this. So this makes difficult for me to spend on things which I really want. And your brand seemed promising online. I just want to try one thing first. If I really like it, I stick to it. That comes to the conclusion कि यार इनका तो रिपीट भी बेटर होगा. तो ये मतलब डिस्ट्रैक्टेड है, आज ये अच्छा लगा कल वो अच्छा लगा. ऑल्दो उसमें भी रिपीट अच्छा बन सकता है, पसंद आ गया तो आ गया, आपका लाइफ बेटर हो रहा है तो व्हाई नॉट. बट tier 2 tier 3 के पास ऑप्शंस ना होने के चक्कर में रिपीट बेटर हो जाएगा अगर आपको क्वालिटी वहाँ जम गया तो. सो वो मेरा चेंज हो गया पूरा डेमोग्राफी कि अब मेरा फोकस पूरे पैन इंडिया पे है. मेरा फोकस अब नॉर्थ ईस्ट पे भी है, मेरा फोकस अब यूनियन टेरिटरीज पे भी है, मेरा फोकस अब tier 2 tier 3 पे भी है, सब पे. And which has really opened up the idea of creating a brand for people who are beyond tier 1. Right? Brand is not just for tier 1. So I think today we function like this. That we'll just create the influence for everybody. We'll create the right product for everybody. एक तो एक्सेस का प्रॉब्लम है लेट्स से tier 2 tier 3 में. क्या सेल्फ केयर भी बढ़ता जा रहा है tier 2 tier 3 में? इज दैट ऑल्सो एन इनसाइट कि लोग सेल्फ केयर पे भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि आई थिंक 10-15 साल पहले की बात करें तो इनर वेयर पे हम लोग पैसा स्पेंड करने की सोचते भी नहीं थे, दिमाग में नहीं आता. मेन विमेन कोई भी कह लो, लेट्स से इट वाज कंसर्न टू अ स्पेसिफिक ग्रुप्स जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, हु टेक केयर अ लॉट अबाउट देयर बॉडी, बट टुडे एवरीवन हैज़ द अपॉर्चुनिटी अबाउट इट. सो इज दैट ऑल्सो एन इनसाइट व्हिच इज कमिंग अप while you are selling products? Or 100%. I think self-care in general, tier 1, 2, 3, in this generation, it has become the number one thing. आप क्या अपनी स्किन पे लगाते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, आप कहाँ जाते हो, सब कुछ सेल्फ केयर है. राइट और वो बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ता ही रहेगा. मतलब बहुत सारे लोग, चाहे वो आज 16 साल के हैं, चाहे वो 26 के हैं, चाहे वो 36 के हैं, वो सारे लोग अब सेल्फ केयर की तरफ मुड़ गए. राइट एंड उसमें फिर मनी मैटर इतना करता नहीं है उनके लिए, क्योंकि अगर आप जिम भी जाते हो, आप प्रोटीन भी खाओगे, आप सप्लीमेंट्स भी लोगे, आप जिम के कपड़े अलग लोगे, राइट सब कुछ करते हो आप. सेम आप कॉफ़ी कौन सी पीते हो, आप चाय कहाँ की खरीदते हो, राइट आप कितना क्लीन खाते हो. इंस्टाग्राम को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों के लिए, राइट एंड आपके आसपास के लोग अगर बेटर करते हैं तो आपको लगता है आपको भी बेटर करना है, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो सेल्फ केयर इज वेरी वेरी बिग थिंग हियर टू ड्राइव ऑल सच एक्सपेंडिचर्स. And it's not like it's not important. Earlier we did not give it importance only. Problem बस उतना हमने importance नहीं दिया, क्योंकि as a guy my decisions of my innerwear was taken up by my mother. हमारा डिसीजन और कौन ले रहा था? पूरी फैमिली की मम्मी ले रही थी डिसीजन कि वो एक बार जाएंगे सबके लिए लेंगे. राइट आपको पता भी नहीं आपको पहनना क्या, बट अब आपको सब जानना है कि इज दिस गुड फॉर मी, इज दिस नॉट गुड फॉर मी. राइट इससे मुझे रैशेस तो नहीं हो जाएंगे, स्वेटिंग ज़्यादा तो नहीं होगी, राइट कहीं मेरा ओडर का कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए. सारे प्रॉब्लम्स है बहुत, राइट आप सब सोचते हो. सो अगर आप इतना सोचते हो तो आपको डायरेक्शन देने के लिए ब्रांड्स चाहिए, आपको डायरेक्शन देने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए. दैट्स व्हाट वी डू, राइट. सेल्फ केयर इज अ बिग थिंग. सो if we tell you today that innerwear is such a huge part of your wardrobe because it basically makes or breaks your day also,
गंदा पहनोगे, अनकंफर्टेबल होगा, आप ही परेशान रहोगे। और आप वो इंसान हो जो सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाएगा, 10 घंटे ऑफिस रहेगा, फिर सोशल सर्कल भी आपको निकालना है अपना, फिर पार्टी भी करनी है आपने, फिर आप वापस भी आओगे। सो इट विल जस्ट बी अनकंफर्टेबल फॉर यू एंड इट विल मेक अ ब्रेक, राइट? सेम जैसे हम बोलते हैं ना कि 10 साल पहले अगर आप मुझे बोलते यार सनस्क्रीन लगा ले, मैं आपको बोलता कैसी बातें कर रहे हो भाई, निविया की क्रीम है मेरे पास, बहुत है। हाँ ये मेरा ब्लू डब्बा बहुत बढ़िया है, हाँ प्लीज। ब्लू डब्बा हाँ, तो आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते थे, बट अब मैं बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं निकलता, राइट? आप मुझे 10 साल पहले बोलते यश परफ्यूम रोज लगाना चाहिए, मैं बोलता भाई सिर्फ शादियों पर लगाते हैं, रोज नहीं लगाते, ठीक है? बट राइट नाउ आई कीप माई परफ्यूम इन माई कार ऑल द टाइम बिकॉज आई वांट टू अप्लाई 3 times इन अ डे। ओकेजन्स भी डिसाइड किया है। कौन सा परफ्यूम कौन से ओकेजन पर जाके डिसाइड किया होगा मैंने। हाँ अगेन शूज का पहले आप मेरे को बोलते कि यार तेरे पास 10 जोड़ी जूते होने चाहिए, हाँ मैं बोलता नहीं चाहिए, एक बाहर का एक घर का बहुत है, और एक अगेन शादियों के लिए, ठीक है? लेकिन अब मेरे पास हर ओकेजन के लिए, हर आउटफिट के लिए जूते हैं, राइट? मेरे कंफर्ट लेवल के हिसाब से हैं, यस मेरा पाँव नैरो है, वाइड है, उसके हिसाब से जूते हैं। सो इफ थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच एंड they have gotten into particulars, यस then it's really important that you give direction as a brand, and that's what we do. आई थिंक ये तो बहुत विन विन सिचुएशन है क्योंकि आई थिंक अब जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं सबके पास पैसा भी आ रहा है, तो स्पेंडिंग पावर भी आ रही है, ऑप्शंस भी आ रहे हैं, तो स्पेंडिंग पावर है, ऑप्शंस जितने जाएंगे मार्केट में, अपॉर्चुनिटी उतनी क्रिएट होती जाएगी दोनों साइड की। Correct, 100%. आपका एक एज है कि योर अदर को फाउंडर हु कॉम्प्लीमेंट्स योर स्किल्स इज कम्स फ्रॉम लेट्स से मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट बैकग्राउंड, एंड फॉर टुडेज डे एंड एज किसी भी ब्रांड के लिए अगर कोई एक को फाउंडर को ही कंटेंट बहुत ज़्यादा समझ में आता है तो एक बहुत बड़ा एज बन जाता है। हाउ इज योर कंटेंट फॉर ऑडियंस इज प्लान्ड टुडे? व्हाट्स आई वुड नॉट go into particular details, but let's say what आपके पास क्या है जो, और आप ऐसा क्या कर रहे हो ऑडियंस को केटर करने के लिए, ऑडियंस को हुक करने के लिए अपने कंटेंट से, जो लेट्स से ट्रेडिशनल ब्रांड्स मिस आउट कर जाते हैं? I think speaking with the audience is something that we do very well, and that's what we have realized. I'll give you a parallel to it. मेरे लिए ना एक ऑनलाइन स्टोर इज नॉट एन ऑनलाइन स्टोर, मेरे लिए वो दुकान होती है बिल्कुल, कि शटर ओपन करूंगा मैं, लोग आएंगे, लोगों से मैंने बात करनी, कोई गले में मैं बैठा, राइट? अब जब तक एक ऑडियंस से मैं बात नहीं करूंगा, कनेक्ट नहीं करूंगा, ना वो रियल होगा, ना वो ऑथेंटिक होगा, ना वो मुझे ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कैन ओनली हैपन वाया कंटेंट टुडे इफ यू स्पीक विद द ऑडियंस इन देयर लैंग्वेज, राइट? एक चीज़ हम करते थे, बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं, कि मेरे फादर ना सामने जो आता है, जिस भाषा में बात करता है, उससे बात उसी भाषा में करते थे ताकि उसको वैसा समझ में आए, बिल्कुल राइट? अगर आप बहुत कैजुअल बिहेव करोगे तो मैं आपसे बहुत कैजुअली बात करूंगा, आप बहुत फॉर्मल बिहेव करोगे, उससे बहुत फॉर्मली बात करूंगा, ताकि हमारा कनेक्ट बने। दैट्स व्हाट वी डू विद कंटेंट। अगर आपको मुझसे एजुकेशन चाहिए हमारे कंटेंट के हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं आपको एजुकेशन दूंगा। आपको सिर्फ जानना है अवेयरनेस क्या है, आपको अवेयरनेस मिल जाएगी। आपको कुछ फन चाहिए, मैं फन भी करूंगा। आपको कुछ मेरी लाइफ के बारे में जानना है कि यार फाउंडर की लाइफ कैसी होती है, मैं वो भी देने को रेडी हूँ, राइट? आपको ये जानना है कि एक नए स्टार्टअप में जहाँ 10 लोग हैं वहाँ काम कैसे होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। आपको अगर ये जानना है कि मैं खरीद तो लूंगी पर इससे लाइफ में चेंज क्या आने वाला है, मैं वो भी बताऊंगा। So if I'm giving you a buffet of your own thoughts, that will make a good connect. And that's what we do with our content. ब्यूटीफुल। Right. And it's via everything. It's via Instagram also. It's via YouTube also. It's via offline events also. So that you and I, come on the same platform and you realize we're just the same people, but I'm just giving you thoda sa gyan so that you feel connected. That's it. भाई टीम बिल्डिंग साइड, ऑन द hiring side, team building, team training side, how did it shape up from starting to till today, and what were some of the challenges those you encountered in the journey till today? I think hiring is the biggest challenge. Every founder out there would say the same. They'll put their head on a wall and they'll smash it when it comes to hiring because it's too damn tough. It's too tough. मतलब आप स्किल सीख लोगे, आप सब कुछ सीख लोगे, लेकिन इंसान को पढ़ना और उनको मैनेज करना, उससे टफ काम कुछ है ही नहीं। मेरे दिमाग में एचआरस की जो रिस्पेक्ट बढ़ी, मैं बता ही नहीं सकता। मैंने कहा सबसे टफ जॉब ही नहीं है, बाकी सब तो अपने लैपटॉप पे काम कर लेंगे, इनको तो इंसानों के साथ काम करना है। सही बात है। सो इट्स टू टफ, बट आई रियलाइज दैट व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, it's not even about skill because skills can be learned. It's not even about let's say getting a lot of experience that can be built. It's more about just the intent. ठीक है, इंटेंट होना चाहिए, काम हो जाएगा, ठीक है?
अगर मैंने बैंकिंग सीख लिया, मैंने फाइनेंस सीख लिया इंजीनियरिंग से आके, जो एक सीए करता है वो उतना मेरे को काम आता है आज के टाइम पे, तो कोई कुछ भी कर सकता है, इसमें इतना बड़ा इशू है नहीं, इंटेंट होना चाहिए। सो मेरा हायरिंग प्रोसेस भी हमेशा से यही रहा कि जो भी मैं इंसान से बात करता हूँ, जिससे भी मैं मिलता हूँ, gender irrespective, of course I want more women in my team because that will, you know, become more relatable for them to work. They can give me a lot more insights as a consumer also, I would say. तो मैं prefer वो करता हूँ. But again, if somebody is coming up with a lot of zeal, lot of intent, good to go. साथ साथ बता देता हूँ, go down this office है मेरा, यहाँ पे आके रोज काम करना पड़ेगा आपको. अगर मैं परेशान नहीं करूँगा वैसे यूजुअली, अगर मैं आपको परेशान करता हूँ तो परेशान होके प्लीज काम कर देना, ताकि आप और मैं साथ में ग्रो करें, राइट? और मैं ये बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे पूरी ज़िंदगी नहीं रहना है, आप 2, 3, 4, 5 साल के लिए आए हो यहाँ पे, तो इतना काम करके जाओ ताकि कहीं और आप जाओ तो लोग बोलें बहुत ही जगह से आए, दैट्स इट। और अगर आप कल को खुद का बिजनेस बनाओ तो आप बस मुझे एक बार याद करो कि मैंने कुछ सिखा दिया आपको या मैंने आपसे कुछ सीख लिया, बिल्कुल, दैट्स इट। ब्यूटीफुल। So that's how I hire today. I don't need a lot of people. I think we don't need a lot of people to a certain scale. We can do a lot more with just 10, 15, 20 people today. Yes, Right? It is much easier. ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती है आपको, आपको बस पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, गुड टू गो। भीड़ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? आधे काम फ्रीलांसर्स कर देते हैं, आधे काम आपके आउटसोर्स कर सकते हो आप, कुछ कोर काम आप इन हाउस कर सकते हो, एंड गुड टू गो। सो इतना ही मैंने अजाइल करके पूरा टीम बनाया हुआ है जहाँ पे सारे लोग 24, 25, 26 साल के लोग हैं, सब हासिल करना जानते हैं, सबको पता है कि ये काम क्यों ज़रूरी है, ओनरशिप अच्छी होती है उनकी, इतना ही तो चाहिए मुझे और कैसे। बिल्कुल। आई थिंक वो जो कल्चर था ना पहले कि अरे हमारी टीम ना 100 लोगों की है, वो कल्चर चेंज होता जा रहा है टू लेट्स से हम 10-15 लोग हैं, तमीज़ से काम कर रहे हैं, अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं और बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। 20 से 25 लोग आज के टाइम पे 100 करोड़ रेवेन्यू कंपनी बना सकते हैं, इससे तो मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ। बिल्कुल भाई, टेलीग्राम, सी टेलीग्राम बहुत आराम से बना सकते हैं, मतलब टेलीग्राम तो चलो सास कंपनी है तो आपको और इसलिए लगता है कि सही है, कम लोग बना सकते हैं, टेकी सही है, बढ़िया बढ़िया दैट्स इट। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ प्योर रिटेल है, उसमें भी लोग नहीं चाहिए मेरे को, हम 25 लोग मिलके एक 100 करोड़ कंपनी बना सकते हैं बहुत आसानी से। सो वो चेंज हो गया बस अब कि अब पता है कि काम कैसे करना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क हो गया, बिल्कुल, which is good, बिल्कुल। right? And nobody's bothered, nobody's giving you a call at 12 in the night. It's all right, you're just working fine in the limited hours of your day. So that's what we function, that's what it is. यस। शार्क टैंक इफेक्ट ब्रांड पे और आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या है? यार शार्क टैंक इज वेरी वेरी फन आई वुड से। मतलब एक तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे बचपन से ही वो एक्सट्रोवर्ट, हाँ, सोशल, ये सब करने का रहता था, मुझे टीवी पे भी आना था, ये मुझे बचपन से था, मुझे टीवी पे आना है, मुझे जर्नलिज्म करनी थी एट सम पॉइंट, राइट? सो जब शार्क टैंक वाली चीज़ आना शुरू हुई इन माई लाइफ, नाउ आई कैन एक्चुअली अप्लाई एज अ बिजनेस, सो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज थ्रिल्ड कि even if they reject me or whatever, I can just be on camera on someday, I don't know. So that pre-process was so fine because I was just enjoying it all the time. हाँ, फॉर्म भरना है, चाहे ऑडिशन जाने हैं, चाहे वहाँ पे जिस दिन शूट है, आई वॉज जस्ट एंजॉइंग इट। मेरे को फर्क ही नहीं था कि डील मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसे मिलेंगे, चाहिए मुझे पैसे, ऐसा नहीं चाहिए, बट अगर नहीं भी मिलेंगे आई जस्ट एंजॉय इट बिकॉज दैट्स एन एक्सपीरियंस फॉर मी, राइट? सो दैट वाज क्वाइट फन. Post that, of course, things have shaped up, I would say. It has gotten a better structure because earlier there was no validation on a national level. yeah, Now there is a validation. People spoken about our products. If you've seen the episode, Namita, that they touched yes, the garment, yes, and they told it's so soft. yes, Now if somebody of that stature is coming down and saying so, it gives a lot of validation. yes, Right? अब ऑर्डर आए ना आए वो बाद की बात है, मुझे वैलिडेशन चाहिए कि 4 लोगों ने अच्छा बोल दिया, जो मैं सोच रहा था 2 साल से वो मुझे कोई बोल रहे कि आप सही सोच रहे हो, उतना चाहिए, राइट? दैट आई गॉट in the episode. Post episode also, a lot of people of course came after watching the episode or hearing about the episode from somebody as a word of mouth. This really worked because now people were asking the right questions. बिल्कुल, कि आपका फैब्रिक कैसा है, सॉफ्ट है कि नहीं है, मेरे को अगर ऑफिस में पहनने हैं तो मैं पहन सकती हूँ क्या, अगर मुझे कहीं जाना है जहाँ पे बहुत गर्मी है मैं पहन सकती हूँ क्या? Good questions to answer. yes, Now it's a good connect. correct, So that really changed a lot of things because now our content also become very structured. Our idea of how to make a bigger brand also became structured. मुझे अब रास्ता दिखाई दे रहा है अगले 6 महीने मुझे करना क्या है, राइट? मुझे माइलस्टोन्स क्लियर हो गए हैं और ज्यादा कि मुझे अब ये नेक्स्ट करना है, सो वो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं शार्क टैंक से। so it's not just an exponent, मतलब just not a spike, it is improving and you are utilizing that effect in your day to day business. Absolutely. मतलब देखो
सेल्स लानी हो ना तो आप डिस्काउंट लगा दो वेबसाइट पे, तब भी सेल्स आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बात सेल्स की नहीं होती है। बिल्कुल बात आपको ना बड़ा सोचना है तो ब्रांडिंग सोचनी पड़ेगी। यार ब्रांड बिल्डिंग होगा कैसे? लोग कैसे बोलेंगे कि यार अच्छा ब्रांड है? अच्छा लोग कैसे बोलेंगे कि अगर आप ये अच्छा ब्रांड लेते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं या बड़े इंसान हैं? छोटी है। हाँ राइट, आपको समझ आता है ब्रांड, इसने अपने ब्रांड लिए। राइट, सो इफ आई वांट दैट वो बेटम आउट, आई रियली वांट दिस वैलिडेशन at every level. So that Shark Tank gave us very easily. I think it was such a good experience after that also, यस because when people speak about it, there are only higher words. बिल्कुल बिल्कुल टुडे what are you most excited about at let's say at your company as well and in your personal life as well जिसकी वजह से let's say मजा आ रहा है भाग रहे हैं what are you most excited about Doing something even next year. कुछ भी नया मुझे कल करना है या अगले हफ्ते करना है या अगले महीने करना है, मैं एक्साइटेड रहता हूँ उन चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे प्लानिंग करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे एग्जीक्यूट करने में बहुत मज़ा आता है। जब मुझे पता होता है कि चीज़ कैसे नहीं होनी, मुझे पता ही नहीं है अभी, मुझे निकालना पड़ेगा उसका तरीका, मुझे बहुत मज़ा आता है वो चीज़ करने में। सो दैट कीप्स मी ऑन माई फीट ऑल द टाइम. I of course I keep traveling, I keep running here and there. That's only because I need to figure out things, right? And this curiosity itself is very exciting for me, because अभी नहीं पता अगला महीना क्या होगा, मुझे नहीं पता उसका अगला महीना क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे फिगर आउट आज करना है, तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगता है. सो दैट कीप्स मी ऑन द मूव. एंड इन द पर्सनल लाइफ ऑल्सो आई थिंक एक तो स्टार्टअप में होता है पर्सनल थोड़ी कम हो जाती है, विच आई हैव एक्नॉलेज एंड एक्सेप्टेड वेरी वेरी लॉन्ग बैक. हाँ And the way I was before during my job days and during my college days, I was so carefree with a lot of things. Now I'm not too carefree, which is also fine, because I've accepted that I have to give a lot of time to my office, to my work, because I enjoy also. No, ऐसा नहीं है कि मैं बोर होता हूँ अपने काम में. अगर मैं enjoy कर रहा हूँ, अगर मेरे 16 घंटे जा रहे हैं काम में, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मेरा दिन तो अच्छा चला गया ना. So that's what I feel. Even in my personal life also, I try कि मैं थोड़ा enjoy कर लूँ खुद अपना personal life. I do my workouts, I do my running, I do my sports. But then also I feel कि ठीक है थोड़ा काम और किया जा सकता है. It's fine. अभी है टाइम, अभी है उम्र, वो होता है ना जैसे आपके फादर बोलते हैं, बिल्कुल बेटा उम्र है आपकी, ये कर लो. तो मुझे वो रियलाइज होता है कि हाँ उम्र है अभी. हाँ अभी रगड़ लो अच्छे से 5-6 साल जितना रगड़ सकते हो. आउटकम अच्छा निकल ही जाना है उसके बाद. नहीं भी निकला तो एटलीस्ट लाइफ में डिसिप्लिन आ गया बहुत सारा. और क्या चाहिए? So yeah, I mean, this is what keeps me on my move. आपके पेरेंट्स से आपको क्या ऐसे वैल्यूज मिले हैं यश जो आप अपने बिजनेस और लाइफ में अप्लाई करते हो विच अदरवाइज लेट्स से अगर वो वैल्यूज ना मिले होते तो लाइफ या बिजनेस थोड़ा डिफरेंट होता Discipline. One is discipline. My father is very very disciplined guy. My mother also is very disciplined. They know if they have some things to do, कितने टाइम में कब तक करना है, they will do. If that means losing your meal, losing your sleep, lose it, but do it. Right? So that is a discipline I've gotten from them since the very beginning. It's not even like a business शुरू किया तो discipline आना शुरू हुआ है, पहले से ही है वो, क्योंकि वो इनवाइब हो चुका है बहुत पहले. Right? That is one. Second is risk assessment, जो कि बहुत ज़रूरी है. मैंने समझ लिया अब तो जाके बिजनेस में समझ ही लिया कि रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है. मेक और ब्रेक आपका रिस्क असेसमेंट ही करता है. सो कितना रिस्क लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, इन तीनों के जवाब आपके पास होने चाहिए. लेना चाहिए ये पक्का है, ये भी उन्होंने दिया है. राइट, आप इतना सिक्योर नहीं खेल सकते लाइफ में, ये क्लियर है. अगर आपको सिक्योर खेलना है तो आप सिक्योर ही खेलो. फिर आप क्वेश्चन मत करो कि क्या मैं ये करूँ या ना करूँ. यू कैन जस्ट बी सिक्योर, दैट्स आल्सो फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, बट टेक रिस्क्स बिकॉज दैट मे चेंज समथिंग इन योर लाइफ. So these things are important from them, because I've seen also, since my childhood also, my father has struggled too much while building a business, while building a family also. Today I don't even have my own family of making की like wife या बच्चे हैं, कुछ नहीं है ऐसा मेरे पास अभी. मेरे पापा के पास तो वो था, तो वो भी देखना है, ये भी देखना है, सब कुछ करना है. That was another level of thing, right? But today I am independent. कोई मेरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है इस टाइम पे, राइट? ना मुझे जो मैं कमाता हूँ किसी को देना है, इट्स फॉर मी ओनली. सो ये तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है. अगर उसके बाद भी मैं डिसिप्लिन से काम नहीं कर सकता, फिर वो नहीं हो पाएगा. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ, आई रियली फील दिस इज ओनली थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट यार. कुछ नहीं चाहिए और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए. आप अगर सुबह उठ के तमीज से ऑफिस जाके 10 घंटे निकाल के अच्छा काम करके वापस आ सकते हो गया काम, हो जाएगा, जिसमें है नहीं. और यश फाउंडर की जर्नी आई वुड से चैलेंजिंग, स्ट्रेसफुल, एक्साइटिंग, हाइडो, लोडो सब होती है. एंड समटाइम्स वी फील दैट वी शुड
speak to someone and express our problem statements. Who are your go-to people when you find some problems, and what kind of problems you have figured out कि इन problems के लिए I should go to people and talk about them? Unless and until that problem is something which I really can't solve myself, I'll not go to anybody. ठीक है. If I feel कि मुझे बस बैठने की ज़रूरत है, हाँ. 2 घंटा बस सोचने की ज़रूरत है और हो जाएगा, हम्म. तो मैं खुद ही कर लूँगा. फिर मैं किसी को नहीं परेशान करूँगा, ज़बरदस्ती 4 ओपिनियंस भी आएंगे, नहीं चाहिए मेरे को, अभी नहीं चाहिए. इंट्रोस्पेक्शन और एकांत पहला शांति से बैठ के खुद कर सकता हूँ सॉल्व, हाँ. मैं कर लूँगा. आई डोंट वांट टू मेक अ सीन आउट ऑफ इट. बिल्कुल. राइट की ज़रूरत नहीं है. जब मुझे लगता है कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार, इसका कोई मेरे को एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा है, देन आई फर्स्ट गो टू माई इन्वेस्टर्स. ठीक है. Right? I mean, these are the people who are ex-operators. These are the people who have seen businesses. Right? They have seen so many things, so many ups and downs. मैंने तो उतना देखा ही नहीं है अभी. So मुझे लगता है कि उनको ये पता होगा क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं देखा ही होगा. So I go to my investors. Aditya Singh is my investor from All In Capital. He's almost like my brother. So I call him at any hour. He always answers. He always helps me out. And it's very, of course, I'm capable like that. You know, he can help me out like this. So that is my go-to person for now. साथ साथ अगर ऐसा कुछ लगता है कि यू नो दिस इज समथिंग यू नो प्रोफेशनल प्लस पर्सनल, मैंने वो माय फादर, बिकॉज नाउ वो बिजनेस कनेक्ट है, तो अब बात की जा सकती है. मतलब फादर सन रिलेशनशिप भी ऐसे इवॉल्व होता है ना. बचपन में बात नहीं करते ज़्यादा क्योंकि आप मम्मी की तरह बात करते हैं, बट नाउ both of you are doing businesses, so there is a connect. You can talk about things. Yeah, it becomes beautiful. It becomes beautiful. Now you have things to speak about. वरना पहले होता था पैसे चाहिए, हाँ पैसे चाहिए, बस इतनी ही बात थी. So अब बातें कर सकते हो तो मैं उनसे बहुत सारी एडवाइस ले लेता हूँ. And yeah, that's more about, that's enough. क्योंकि एक तो मुझे बहुत क्लियर है कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो नहीं सकती इसका सोल्यूशन ना मिले. कुछ ऐसा होगा ही नहीं. सोल्यूशन हमेशा मिलेगा. बिल्कुल. टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बिल्कुल. शायद पैसे लग जाएंगे, और क्या ही होगा. सही बात है. राइट. और नहीं भी सॉल्व हुई तो कुछ ना कुछ करके वो ठीक तो की जा सकती है. सो इन 3 लोगों के पास चले जाता हूँ मैं आसानी से. यश भाई, आई डिडंट फील फॉर अ सेकंड कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन. इट वाज जस्ट अ नॉर्मल कैंडिड कन्वर्सेशन विद द फाउंडर. और मेरे को बहुत सारे और सवाल पूछना है, बट आई वुड रजिस्ट माई सेल्फ हियर बिकॉज एक हमने सेक्शन बनाया है तो जेनजीज, क्योंकि द मेजर पीपल इन ऑन दिस अर्थ राइट नाउ, एटलीस्ट इन इंडिया, आर जेनजीज, एंड they are now the decision makers for products, services, etc. to buy them, consume them, give feedback, share feedbacks. और जेनजीज के बारे में अलग अलग नोशंस इंटरनेट पे है. अरे काम चोर है, अरे बढ़िया है, अरे ये है, अरे वो है. वी सी लॉट ऑफ वायरल रील्स अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो व्हाट वी थॉट ऑफ कि चलो एक जेनजी सेक्शन बनाते हैं जहाँ पे क्यूरियस जेनजी विल कम ऑन द सीट एंड आस्क हर क्वेश्चंस डायरेक्टली to whoever is coming on the show. So today, Yash Goel with a curious Gen Z. So I'll take a leave here. I truly enjoyed this. Thank you for Thank you so much. Thank you. Hello, sir. Hi. So this section is about Gen Zs, of course, because we are there out. Now we are like God to the earth now. So, we can say that. But yes, I just, starting with, we have Gen Zs. We are like, मुझे रोज इम्प्रेस करो, अदरवाइज आई एम आउट. वी आर नॉट लॉयल टू द ब्रांड्स, वी आर लॉयल टू द फीलिंग्स. सो व्हाट एग्जैक्टली Curvy is doing to, like, to sustain us? I think engagement is important for everybody right now, right? You need to be engaged enough so that you look at the brand, you understand the brand, and you stick to it also, right? Because Gen Zs, I understand, are very curious people. They can get distracted. If something is nicer enough, they'll go towards that, right? And it's fine also because some things can be nicer. So as a brand, I have to evolve as per them. आपको क्या पसंद है, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचना चाहते हो, नेक्स्ट थिंग ऐसी क्या होगी जो आपको एंगेज कर लेगी, मुझे वो सोचना पड़ता है. एंड दैट इज समथिंग विच इज एक्साइटिंग ऑल्सो बिकॉज एज अ ब्रांड इट गिव्स मी अ डायरेक्शन कि अच्छा भाई नेक्स्ट चीज़ मुझे ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये इंसान मेरे पास दोबारा है. राइट. इवन इन कॉन्टेंट, इवन इन प्रोडक्ट्स, इवन इन लेट्स से अगर मुझे कलर्स भी चूज़ करने हैं अपने प्रोडक्ट्स में तो मैं वो सोच के करता हूँ कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा और क्या लेगा. So I think it's very important today. The reason why traditional brands, they plateau after a point and new age brands, they become big is only because they evolve with time and evolving with the consumer. Today, Gen Z is going to be the biggest consumer for any brand, be it anything, even food, even FMCG, even fashion. सबका सबसे बड़ा Gen Z बनेगा consumer, right? So हमें उनके हिसाब से काम करना चाहिए और करना पड़ेगा. That's good to hear. Of course, we are here to, like, we are the one
upcoming audience. Okay, so मतलब when we talk about shape wears, हमें देखा जाए traditionally shape wear use होते थे to hide bodies traditionally, but we don't love our body. We are more comfortable how we look. So what Curvy is doing to to bring that perspective है कि Curvy ऐसा क्या कर रहा है कि मतलब body height वो ऐसा कैसे मार्केट कर रहा है मतलब प्रोडक्ट को कि दैट इट पोर्ट्रे टू अस कि वो बॉडी हाइड करने के लिए नहीं बोल रहा है, बट इट इज गिविंग अस मोर कॉन्फिडेंट, वी आर फीलिंग मोर वी आर आउट देयर विद मोर कॉन्फिडेंस. वो हाउ डज कर्वी इज गेटिंग ऑल थ्रू दैट ऑल. सो 10 साल पहले ना शेव वेस्ट को बोला जाता था टमी टकर्स, यस. है ना, और वेस्ट सिंचिंग कपड़े हुआ करते थे, which was making them, look like some Victorian times of people, at the cost of discomfort, at the cost of, just not eating fine or not breathing fine or whatever. I think we need to change this entire perspective कि shape wear ना आपकी body को बदल नहीं रहा है, आपको डिफॉर्म से फॉर्म या फॉर्म से डिफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं. शेप वेयर इज जस्ट टू एनहांस हाउ यू लुक और हाउ यू फील, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप आज अगर फॉर्मल्स पहनते हो, आपको एकदम से ना कॉन्फिडेंस आ जाता है हल्का सा कि मैंने फॉर्मल्स पहने हैं, तो आई एम लुकिंग बेटर टुडे, आई एम लुकिंग मोर प्रोफेशनल, लेट्स से. सो पहनने को तो टी शर्ट भी पहन सकते थे, पर आपने शर्ट पैंट क्यों पहना फिर? क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए था, राइट, एंड यू फेल्ट फाइन. इट्स जस्ट द सेम थिंग बट ऑन द इनसाइड. That shapewear will give you that feeling that you are looking better today, you are feeling better today. मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा. हम ज़ारा से शॉपिंग करते हैं, हम यूनिक्लो से शॉपिंग करते हैं, 5-5 हज़ार की ड्रेसेस आती हैं, 6-6 हज़ार की ड्रेसेस आती हैं. अगर वो 5 हज़ार की ड्रेस आप पर अच्छी लगी ही नहीं तो आप क्यों लोगे? ऑफ कोर्स. राइट. फिर आपको लगेगा मेरे 5 हज़ार भी वेस्ट हो गए, मैं अच्छी भी नहीं लग रही. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 5 हज़ार का आपने ड्रेस ले लिया, अच्छी बात है, आपने 1,000 का शेपर ले लो एंड यू वुड बी फाइन. It's not to make you cinched. It's only to make you look better or feel better कि confident feel होगा आपको, तो आप ले लोगे, right? Because आपको 5,000 का ड्रेस अब justified लग रहा है क्योंकि आप अच्छे लग रहे हो. तो शेप वेयर का डेफिनेशन बदल गया है अभी. It's not to deform your body. Right. It's just to make you feel better, look better. That's it. Enhance your lifestyle. That's great. Of course, we feel more confident when we wear something good. वो हमको और अच्छा present करता है. So this is very like basic question, and I may 100 people has asked you this, but as a Gen Z, I'm very curious to know, you being a man, for example, and you're running a brand which is female centric, मतलब women centric. So how can you say, like, what is the thing that carries you? Firstly, secondly, how are you, making changes in the particular product which you are not using yourself? So it's very weird thing. आप वो product बना रहे हो तो आप खुद ही use नहीं कर रहे हो. So how that is going? इसका भी ट्रिविया देता हूँ मैं आपको, ठीक है. You know this brand called Victoria's Secret, right? That was started by a man for his wife, because in that time he was not allowed to enter a store of a lingerie. It was a big taboo for a man to enter a store of lingerie. So he basically broke this taboo by starting a brand. Today, if I take any big brand's name also, I'm 100% sure it's gender respective. There'll be man-centric brands led by women. There will be women-centric brands led by men, right? I understand I'm not a consumer. I cannot be a consumer. I do not have a lot of insights today on the problems, etc., what you guys feel. But I also know that with the right sort of knowledge which I have today, plus the people who are around me, which is my team, which is my customer, who are giving them a lot of feedback, I can definitely make a difference, right? Because for me, it's more like brand building, business building, प्रोडक्ट बिल्डिंग हम सब साथ मिलकर करते हैं. मैं अकेले नहीं कर सकता, वो मैं कर ही नहीं सकता, मैं कभी नहीं कर सकता, राइट. सो ऑल माई इनसाइट्स, ऑल माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, द प्रॉब्लम्स, द सॉल्यूशंस, दे कम फ्रॉम women only, and it has to come from women. I cannot make an opinion, right? I do not have an opinion because I don't use this. So this is what we think. And starting भी ऐसे ही किया था. बहुत लोगों ने पूछा है हमसे, ऐसा नहीं कि आप पहले इंसान, बहुत लोगों ने पूछा है. बट मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि अगर मैं इस पे खुद से बना ही नहीं रहा, मेरे साथ इतने लोग मिलके बना रहे हैं और वो सारे वही लोग जो कंज्यूमर्स हैं, then I cannot go wrong. Right. Yeah. Okay. That's like a very straightforward answer. I'm like, now, as you said that we are consumer, that is Gen Z women's out there, and we are, as I've already told, we are not loyal to the brand. What Curvy is doing different from other brands that we come to you? What is that? You can tell us what are that way, or what is that exactly what you are doing something different from the other brands कि हम आपके पास आए, क्योंकि as a person, as a brand, you have to be on toes to every time.
तो ऐसा क्या यूनिक आप कर रहे हो जो बाकी ब्रांड्स नहीं कर रहे हैं? दैट वुड बी द I क्वेश्चन. think making a very focused positioning of what we stand for and what we are delivering. Whatever we make today in our brand, any product, that's for all day, every day. That's what we say in every content piece, all day, every day. आप इसको रोज पहन सकते हो, कभी भी पहन सकते हो, राइट? ये एक ऐसा नो ब्रेनर प्रोडक्ट है आपके लिए कि आपको आउटफिट चूज करने में टाइम लग सकता है, बट आपको ये चूज करने में टाइम नहीं लगना चाहिए. आपने अपना वार्डरोब खोला, ड्रॉअर खोला, आपने आंख बंद करके उठा लिया मुझे ये पहनना है, क्योंकि आपको कंफर्ट देगा ही देगा, आपको पता है ये. इसको बोलते हैं नो ब्रेनर प्रोडक्ट, और यही हम बनाना चाह रहे हैं, यही हम बना रहे हैं. सो व्हेन वी आर जस्ट सेलिंग कंफर्ट, the entire idea of marketing also is comfort. The Yes. entire idea is just to make sure it's a lifestyle upgradation and that you can become no-brainer for this product. And that's what we do. That's the first purchase thing. The second purchase, it has to be via product, right? Product has to be king. आज किसी की बहुत अच्छी मार्केटिंग होगी पर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आप दूसरी बार नहीं खरीद पाओगे ना. आप बोलोगे यार क्यों मैं इतने पैसे दोबारा दूं, मैं क्यों यहाँ पे दिमाग लगाऊं, प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं था. प्रोडक्ट हैज़ टू बी किंग. सो प्रोडक्ट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे उसमें रीहाइड्रेशंस करने पड़े, चाहे उसमें हमें और मेहनत करके इम्प्रोवाइज करना पड़े, विल डू इट, बट विल मेक श्योर द कस्टमर कम्स अगेन सो दैट दैट पर्सन इज हैप्पी, राइट? बीट ऑफ द फैब्रिक, फिट, फंक्शन, कुछ भी हो, we have to make the customer happy so that they have to come back and they should come back. So this is what we do differently, that we need to focus on two right things. Number one, making sure we speak to customers so properly that they understand our language, all day, everyday comfort. And secondly, making sure the product is so nice that they will come back. Right. And that is the best way to advertise a product. Okay, after keeping the product side, you have been an entrepreneur. You have been founder. Gen Z's out there, have you seen Instagram has romanticized so much to be in startup को इतना romanticize कर दिया है कि everyone out there want to start मतलब want to put their idea out there in the world. So जितना Instagram ने romanticize किया है, I just want to know the backhand story. Is it that romantic to be a founder of a particular brand and to start something which that is in your head, and you just, what is that real story behind the story? I just want to know that so that people out there come to know कि इतना आसान नहीं होता है, because बाहर तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है. People, founders are going, having podcasts, having enjoying their life, वो सब हमें दिख रहा है. But what is the behind story? What you go through every day? What is the real story that you do not share in particular platforms? Yeah, Instagram, but everybody's in the best thing, Yes. right? If I'm wearing the best shirt, I'll put a picture today itself. Right. And if I'm wearing a t-shirt which I'll use for my Holi, तो वो तो मैं नहीं दिखाऊंगा ना Instagram पे. तो of course Instagram पे तो glorification होता ही है, and that's the purpose of every founder, to make sure, you know, we are putting the right things forward. The real story is always, you know, it's not a struggle, I would say. मैं struggle glorify नहीं करता. Struggle वो है ही नहीं कोई ऐसा. आपको मजा आ रहा है, आपने खुद चूज किया करने के लिए, वो struggle नहीं है. Right? आपके पास choice थी, आप जॉब कर सकते थे. Right. और आप business कर रहे हो, it's not a struggle. It's fun only. Lot of ups and downs, lot of stress, lot of problems. Of course, it's not easy. Of course, it's not like you'll figure it out in a day. It will take time. It will take a lot of effort, and that is something you need to enjoy. Right? अगर आप वो enjoy नहीं कर पाओगे तो आप founder भी अच्छी नहीं बन पाओगे. फिर आप क्रिप करते रहोगे जो आप जॉब में भी कर रहे थे. So उसका फायदा नहीं है. Right? And of course, it's good influence for a person who would like to start also. अगर मैं Instagram पे बता रहा हूँ कि you know, as a founder my life is like this, or if I'm showcasing something, और अगर उसको देख के किसी ने शुरू कर लिया और शायद कुछ अच्छा कर लिया, good influence also. There is no problem with that. Unless and until you also have to, you know, assess yourself कि आप सुन तो रहे हो किसी फाउंडर की, बट आप क्या वो सेम चीज़ें कर भी रहे हो जो वो करता है. जैसे आई रियली एडमायर अ फ्यू फाउंडर्स इन इंडिया, राइट? अगर मैं उनकी लाइफ देख के कुछ सीख लेता हूँ, अच्छी चीज़ें ले लेता हूँ, देन मेक अ डिफरेंस. बट अगर मैं वो चीज़ें कर ही नहीं रहा जो वो लोग करते हैं, तो प्रॉब्लम शायद डिफरेंस नहीं आएगा ना. तो व्हाट इज द राइट टाइम कि एक एम्प्लॉय को रियलाइज हो कि नाउ इट इज अ टाइम टू स्टार्ट, गिव अ स्टार्ट? There is no right time. Whenever you want to. Even if you're in college also, just start. If you feel that you have an idea that you believe in and that you think can become big, and if you want to just try and test it out and validate for the next 6-7 months, do it. No. Why do you have to wait? As I said, as a Gen Z person, you are too smart for the world. I'm sure you are, because you know how to use resources so well. राइट? हमें नहीं पता अभी भी, हम भी अभी भी फिगर आउट ही कर रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ होंगी. आप जल्दी फिगर आउट कर सकते हैं, आपको करना आता है. तो अगर आपको आता है तो ट्राई करके ख़त्म करो. अगर ट्राई करके चल गया पता कि बिजनेस बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कुछ और कर लेंगे. ओके, दैट्स ग्रेट. आई होप मैक्सिमम पीपल अंडरस्टैंड दैन एंड वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे.
this is something which I really wanted to know. आपको कब realize हुआ that you have to start this brand? मतलब because as a female I can understand कि मेरे को problem हो रही थी, I can start this brand. When did you get कि आपको you have to choose this brand only? आपको इस brand को grow करना है. Because how did you get that? There was like something you observed or you noticed. So yeah, two things. One, I was working with a fund before. We used to invest in startups. A lot of money used to give startups, and especially D2C brands. So my entire journey with that fund was working with the best of brands and the best of founders. You must have heard of Sugar Cosmetics, Yes. Bliss Club, Foxtail, Pilgrim, Neiman's. Right. I've worked with all these people very closely just to understand how they think and how they scale. Right? They're scaled very quickly. They are scaled so fast. And the consumer love is there, and the consumer repeat is there, and people are now ditching traditional brands and Western brands for these new Indian brands. So if that thing is happening in such less time, I wanted to know कैसे कर रहे हैं लोग. और जब मैं वो समझा हल्का हल्का तो वो ट्रिगर आया मुझ में कि मुझे भी ब्रांड बनाना है. But this category was not always the first in my head. Of course, I had to look around, understand, research a bit, etc. etc. That's where it was also a purpose कि ये कुछ niche में जाना है, कुछ niche करना है, ऐसा कुछ करना है जहाँ पे नहीं ज़्यादा लोग अभी काम कर रहे, जहाँ पे ज़रूरतें हो सकती हैं, जहाँ पे मैंडेटरी कोई चीज़ होगी ये तो लेना ही पड़ेगा, etc. तो ये मेरे दिमाग में था. And after of course noticing patterns of how women shop, how men shop, how kids shop, how adults shop, थोड़ा सर्च करते करते मैं इस फाइनल पे पहुंच गया कि innerwear as a category is very niche. People don't talk about it. It's a very mandatory category. And people now want a good brand because they have literally gotten influenced by so many global brands. Skims ever, Spanx ever. लोग देखते हैं उनकी वीडियोस, लोग समझते हैं क्या है वो. ठीक है, विक्टोरिया सीक्रेट इंडिया में अब जाके आया है 4 साल में, पहले नहीं था इंडिया में. मेरे कहाँ स्टोर थे इंडिया में. सो अब लोगों को समझ में आता है कि यार एक्सेस मिल रहा है हमें और हमें को ऐसा चीज़ चाहिए. सो व्हाई नॉट. And do you feel somewhere कि अगर this brand would be led by a woman तो ज़्यादा सेल होती या ज़्यादा impact होता? Is it where somewhere you got that anytime that insecurity? इतना सोचूंगा मैं काम कैसे करूँगा. इतना नहीं That's so सोचता. So this was a great conversation. But yeah, I just want you to give one piece of advice that you carry throughout yourself कि ये piece of advice तो मैं हमेशा रख सकता हूँ. That can be anything, any advice to us you want to give so that मैं इसको I can take this because I'm learning in this podcast with everyone and I would like that कि आप मुझे कोई एक advice दो which I can carry forward. I have just one motto in life, and that is a very valid motto. It is very filmy also for that matter. But if something cannot kill you, you'll just be stronger. So it's my motto. If failures will happen again and again, every day you will find a failure. इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं. But if you're just finding get up and do it again, it's fine. You're just stronger. So if something cannot kill you, it will make you stronger. That's great. So it was a nice conversation with you, and I learned a lot. And frankly speaking, while searching about you and the whole research work, I have seen lots of podcasts of yours, and I was like curious कि मैं क्या questions पूछूंगी. And I have not note down a lot many questions, but right now मैंने सब कुछ बहुत opposite पूछा है, which I really had. And it was a great conversation. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you so much.